Good evening. It's of you to this special webinar organized on the occasion of World Hypertension Day. I'm Anuja Joshi, Manager of Venu, an institute dedicated to sight and living. World Hypertension Day is just a reminder. It is a reminder that serious affects millions. The for this measure your blood pressure accurately, control it, live longer is a powerful call to action, emphasizing the importance of awareness, early detection, and sustainable lifestyle practices in managing blood pressure. At our institute, we believe in integrating modern understanding with traditional wisdom. Naturopathy, along with targeted eye care and lifestyle interventions, offers promising ways to manage hypertension safely, naturally, and effectively. Today, we bring together experts from both conventional and complementary fields to discuss this multidimensional health issue, offering you insights that are both practical and empowering. I would like to extend my heartfelt gratitude to all our distinguished speakers and all of you joining us today from various parts of the country and the world. Your presence reinforces the importance of this conversation. Let this session be a step forward in raising awareness, sharing knowledge, and promoting holistic well-being for all. Together, we can move forward toward a healthier future where prevention is prioritized and natural therapies are embraced. Thank you once again, and I wish you a meaningful and enriching webinar ahead. Before we begin the session, I would like to request all participants to turn their speaker on mute mode and kindly type your questions in the chat box. We will take all questions at the end of the sessions. I now invite Dr. Sumita Das, our first speaker today, to speak on hypertension and the eye. Dr. Sumita Das is currently working as a consultant at Venu Eye Institute and Research Center, Delhi. She specializes in anterior segment and neuro-ophthalmology and has more than 15 years of experience in ophthalmic diagnostics and management. Over to you, Dr. Smita. Dr. Sumita, unmute yourself. Thank you, ma'am. Sure. Thank you, ma'am. Good evening, everyone. Today, I would like to give you a brief overview of the effects that high BP or hypertension can have on the eye. थोड़ा अगर हम ये समझ ले कि अगर हम पहले ये समझ ले कि आंख काम कैसे करती है, तो जो भी चीज हम देखते हैं, जब भी कोई चीज हम देखते हैं, वो हमारी आंखों की पुतली से गुजर के बीच की जो लेंस होती है उससे गुजर के पीछे के पर्दे पे पड़ता है, विच इज ऑल्सो नोन एज द रेटिना। पर्दे पे बहुत सारी छोटी नसें हैं जो इस मैसेज को प्रोसेस करती है और एक बड़े नस के थ्रू पीछे दिमाग को ये मैसेज पहुंचाती है। The brain then processes what the image has been seen by the eye and gives a message to the eye that this is the said image which is being seen by you, and that is how the entire system works. If anything from the cornea, जो बाहर की पुतली है, बीच का लेंस है या पीछे के पर्दे हैं, उसमें से अगर किसी भी चीज में दिक्कत होती है तो फिर रोशनी कम हो सकती है। Now, as we all know, there are common conditions of the eye which affect vision. Many of you will be aware of it. इसमें चश्मे के नंबर जो सबसे कॉमन रिफ्रैक्टिव एरर्स होते हैं, जिसको हम चश्मे का माइनस या प्लस नंबर से ठीक करते हैं, वो सबसे कॉमन है। वो बच्चों से लेके बड़ों तक किसी में भी हो सकते हैं। तो ये एक मेजर ट्रीटेबल कंडीशन है
आंखों का जो सफेद मोतिया जिसे कहते हैं कैटरैक्ट, और वाइट मोतिया, सफेद मोतिया which is treated with surgery, in which the lens which is already in our eyes from birth becomes white. उस पे उम्र के साथ सफेदी आ जाती है, लाइट जो उससे पास होना चाहिए वो पास नहीं हो पाता है, तो उससे हमें निकाल के दूसरा लेंस डालते हैं जो सर्जरी से ठीक हो जाता है. And cataract happens to be one of the leading causes of visual loss in all age groups and is treated with surgery. Glaucoma, मतलब जो काला मोतिया होता है, is also known as a silent thief because it is usually detected pretty late, and by the time quite a bit of damage has already been done to the nerve. नस पे होने वाली डैमेज को हम ठीक नहीं कर पाते हैं, रिवर्स नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसको हम दवाई से या ऑपरेशन से वहीं के वहीं रोक सकते हैं. तो ये इन सब की जानकारी मोस्टली सबको होगी, लेकिन ऐसे कुछ कंडीशंस हैं आंखों में जो यूजुअली सिस्टमिक कंडीशंस, मतलब शरीर की कोई भी दिक्कत के वजह से आंखों में दिखने लग जाता है, उसका इफेक्ट दिखने लग जाता है. और उसमें कॉमन कंडीशंस ब्लड शुगर हाई होना मतलब डायबिटीज, और ब्लड प्रेशर हाई होना मतलब हाइपरटेंशन है. अब काफी लोगों को ये नहीं पता होगा कि कुछ पेशेंट्स हैं, कुछ परसेंटेज चलो पेशेंट्स चलो हैं जिसको सबसे पहले जब जिसको सबसे पहले जब डॉक्टर, जो आंखों के डॉक्टर के चेकअप के लिए जाते हैं, तब वो डॉक्टर उनके पर्दे का चेकअप करके बताते हैं कि पर्दा देख के या पर्दे के नसों को देख के लग रहा है कि हो सकता है आपको डायबिटीज हो सकता है आपको बीपी हो. उस टाइम पे यूजली पेशेंट को पता नहीं होता है, फिर जब वो जाके चेक करता है तो उनका बीपी रेज्ड आता है. इसीलिए द इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट and of a comprehensive eye checkup cannot be emphasized more, since there are many times when certain number of systemic disorders are discovered on an eye examination. This is the blood pressure range as suggested by the American Heart Association. तो जैसे आप सब देख सकते हैं, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेंज है वो ये एक रेंज है, लेकिन अगर 120 ऊपर का 120 और नीचे का 80 के नीचे रहता है तो उसको हेल्दी या नॉर्मल गिना जाता है. उसके बाद से जो भी बढ़ता जाता है वो अलग अलग स्टेजेस में माने जाते हैं, और 180/120 के से ऊपर अगर जाता है तो इसको हाइपरटेंशन क्राइसिस कहते हैं, एंड इट इज एन इमरजेंसी विच हैज टू बी स्पेशलिटी हॉस्पिटल. The prevalence of hypertension in India, as per the National Family Health Survey of 2019-21, is that there's an overall prevalence of 22.6%, with men found to be hypertensive more than women. And as we all know, इसकी उम्र से relation है, इसलिए जैसे ही उम्र 60 से ऊपर बढ़ता है, it affects approximately almost 50% of individuals above 60 years. Now coming to the effect of hypertension on the eye, तो आंखों पे इसका क्या क्या इफेक्ट होता है. एक तो होता है जैसे बीपी शरीर का होता है, वैसे आंख में ही वो पर्दे पे असर कर दिखाता है. तो दैट इज नोन एज हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी. वी विल गो इनटू डिटेल्स विद दैट इन द कमिंग स्लाइड्स. आर्टरी एंड वेन ऑक्लूजन्स, रक्त की जो खून की जो नालियां हैं जो आंखों में ब्लड सप्लाई करती है, वो अगर कहीं दब जाती है, खून अगर कहीं रुक जाती है, तो बीपी के वजह से ये चांस बढ़ सकता है. ग्लोकोमा जैसे हमने अभी डिस्कस किया, काला मोतिया स्टडीज दिखा चुकी है कि काला मोतिया के चांसेस जो हाई बीपी वाले पेशेंट है उसमें ज्यादा होने के चांसेस है. एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन, जिसको हम पर्दे पे घिसाव, उम्र के वजह से घिसाव कहते हैं, उसका भी लिंक पाया गया है बीपी बढ़े होने से. और जो पेशेंट्स में ऑलरेडी डायबिटीज है और डायबिटीज के वजह से पर्दे पे असर हो रखा है, उनमें ये जो असर है ये तेजी से बढ़ने की संभावना हो जाती है अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन भी साथ में हो.
साथ में जो आंखों को जो घुमाने ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमाती हुए नसें हैं जो जाके जुड़ती है दिमाग के साथ, हाई बीपी के वजह से उन नसों में कमजोरी आ सकती है, आंख घूमना बंद हो सकता है या कम हो जा सकता है, और इंसान को ये लगेगा कि उसको डबल दिख रहा है या वो एक तरफ देख नहीं पा रहा है। अब हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी जो है वो पर्दे पे जो रक्त की नालियां उस पे जो असर होती है बीपी के वजह से, the raised BP which affects the blood vessels of the eye of the retina is a very important finding which is done after a proper which is seen only after a proper dilated examination of the eye. And this is important. Why? Because it can be an indicator of ongoing damages in other parts of the body. It can be an indicator of an ongoing heart problem which might lead to a heart attack. It can indicate an ongoing problem with the blood vessels of the brain which can lead to a stroke, and it can also indicate problems in the kidneys. That is why it is very important to be able to diagnose hypertensive retinopathy. This is just an overview of what all can happen in the retina, what we see when we examine the eye in the patient of hypertensive retinopathy. So जो आंखों की नस है वो सूज सकती है, ऐसे सूजन के येलो या व्हाइट स्पॉट्स दिख सकते हैं, पर्दे पे जो पीछे का भाग है उस पे एक स्टार फॉर्मेशन जैसा व्हाइट स्पॉट्स के साथ हो सकती है, खून के धब्बे आ सकते हैं. दिस इज व्हाट इज कॉमनली सीन इन hypertensive retinopathy. Now it has a wide range of prevalence and it is mainly affected by age. As I already told you, there is a propensity for increasing age. There's a propensity in male gender. And as we all know, as longer the duration of the hypertension, especially if it is uncontrolled, more the chances of hypertensive retinopathy. Also, improper or uncontrolled hypertension gives more chances of hypertensive retinopathy. If there are comorbidities like diabetes, also there's a link with higher prevalence of hypertensive retinopathy. And of course, lifestyle, coming to the recent lifestyle of many of the people in their 40s, 50s, the sedentary lifestyle that has been adopted, the lifestyle can also affect the hypertensive retinopathy. So where do we actually face roadblocks in diagnosing this condition? Is first thing that many people are not aware that they have high BP, and many people who have high BP are not aware that it can affect their eyes also. So they go for an annual health checkup, they get all their medications, they get their BP checked, and even if it is raised, even if their physicians recommend a fundus examination or a retina examination, very few turn up in our OPDs for the same. So we have a lack of patient compliance, and suppose the patient does end up coming for a checkup, we have a lack of follow-up. So these things have to be addressed at the physician level and as the doctor's level. As we all know, the old idiom, prevention is better than cure. So as I mentioned, lifestyle modification is a mean which can prevent hypertension or at least keep it under control, and in this way prevent hypertensive retinopathy. You need to quit smoking. You need to give up your sedentary lifestyle. We know most of you have to be on the laptop or desktop working morning to night, but take breaks, move, exercise whenever you get time, exercise, hit the gym or do a normal walk, run, eat healthy food, avoid junk food, and always believe that prevention is always better than cure. We usually recommend initial assessment by the physician once we have detected a high pressure in a patient. And once the physician has seen the patient, here at Venu, we believe in a holistic integrated approach. We recommend, if the physician approves of it, consultation with a naturopath, because naturopathy has been seen to help in collusion with the physical medicines, with the other things. Naturopathy has been seen to help in hypertensive patients as well as in hypertensive retinopathy. So the
This will be further elaborated by my colleague who will be talking on naturopathy, as well as my colleague will be giving you an idea about the advantage of yoga in this condition. These are the contact numbers. Please reach out to us. Come for your annual eye examination along with your annual health checkup to Venu Eye Institute. Thank you. Thank you, Dr. Sumita Das. I now invite our next speaker, Dr. Anshika Pathak, who will be speaking on understanding and managing hypertension through naturopathy. Dr. Anshika Pathak is currently working as a consultant at Venu Naturopathy Center in Delhi. She specializes in chronic disease management through natural therapies, diet, and lifestyle correction. A firm believer and practitioner of naturopathy herself, Dr. Anshika combines scientific understanding with holistic healing. Over to you, Dr. Anshika. Thank you, ma'am. A very warm welcome to everybody who has joined the webinar. Today, we are going to understand and learn how to manage hypertension through naturopathy. First, we'll understand how naturopathy views hypertension. In naturopathy, we don't believe that hypertension is a disease. We feel that it is a reflection of an internal imbalance. That internal imbalance can be caused by toxemia, that is accumulation of metabolic waste, nervous system overdrive. Sometimes we are constantly in a fight and flight mode, and there's a lot of stress, anger, and worry. That is understood as a cause of hypertension in naturopathy. There's also lifestyle errors that we all know about, that we are having sedentary habits and we don't have a circadian rhythm, we don't sleep on time, we don't wake up on time. So that is also understanding of hypertension in naturopathy. We also sometimes suppress the natural urges that I'll be explaining in the further slides. There's something known as the gut-brain friendship or the gut-brain imbalance. So the gut, naturopathy believes that everything and any disease is caused by the imbalance in gut, the toxicity in gut. So if you're having constipation, if you're having a lot of toxic material in your intestines, then you are welcoming diseases, is what we believe in naturopathy. So there are these basic principles of naturopathy, which I would like to explain a bit. The first principle is the most important one, and that means body heals itself. It means शरीर खुद को खुद ठीक करता है. Now you would ask then फिर naturopathy क्या करता है या allopathy क्या करता है? See, naturopathy क्या कर रहा है? It's giving an opportunity to the body to heal itself. Healing कोई डॉक्टर नहीं कर रहा है, या even a naturopathy doctor believes that he's not a doctor and he's a teacher to teach you how to lead and how to live your life in order to allow your body to heal itself. The second principle is main cause of disease is innervation. Innervation is the lack of vital energy or the lack of nervous supply in the body. प्राण किसी जगह पे प्राण का जो बैलेंस है वो कम हो जाना. तीसरा principle है deposit of metabolic end product in the body is disease. So there's a lot of chemical reactions that goes inside our body, and these chemical reactions have an end product. They have a resultant, which sometimes is very toxic, which is a free radical sometimes. And when it gets deposited in the body and when you are unable to excrete it, it causes disease. The other one is acute disease is a remedial process. So in naturopathy, we believe that acute diseases are our friends, because, for example, if someone has a illusion and if they try to suppress it by some methods, then what is happening is the toxins remain inside the body, and that gets absorbed in the blood through the intestine, and that keeps moving inside the body, creating more toxins, leading to disease. The other principle is a building material and does not increase the vitality. Now, vitality, as I already explained, is the prana or the vital power that we have. If we keep eating food, the vitality will not be increased. The weight will be increased, however, but the vitality will not increase. The vitality increases when you follow with nature, when you are in balance with the nature. The other principle on the same thing is fasting provides an opportunity to the body to heal itself. Now, if we eat a lot of food like chola bhatura or biryani,
then what happens is our body has to do a lot of work in order to digest it, because these all the junk food is very difficult to digest, so body has to put an extra effort in order to digest all this, and half of the energy is wasted in that digestion process only. So when we are suffering with any acute disease or even a chronic disease, we recommend in naturopathy to our patients to do fasting, because your body will be at ease and at rest. And it also performs autophagy. It tries to destroy its own harmful things. And phagocytosis मतलब कि जो कचरा है ना, शरीर उसको खुद खा लेता है। इस प्रकार से जब हम उपवास करते हैं तो शरीर की एनर्जी शरीर में जमे कचरे से आ जाती है। अगला प्रिंसिपल है, जर्म्स डू नॉट कॉज द डिजीज बट आर फाउंड इन डिजीज कंडीशन। तो जब कीटाणु जो हैं वो बीमारी नहीं करते, ऐसे नेचुरोपैथी मानती है। हालांकि कीटाणु जहां बीमारी होती है वहां मौजूद रहते हैं। सो कोविड केम एंड एवरीबडी वाज exposed to the COVID virus, but few of them got it and few of them didn't get it. It depends on the vitality, it depends on your immune system. And तभी सबको याद आया कि immune system भी बहुत important है हमारे लिए। Exercise or physical activity keeps the balance between nutrition and drainage. So if we are eating food continuously, हम खाना खा रहे हैं but हम exercise नहीं कर रहे, that food doesn't get absorbed properly and that food doesn't get excreted out properly. हमारा जो intestine का movement होता है, peristaltic movement, वो भी improper हो जाता है, फिर constipation होता है. So exercise is very very important. It also जब हम exercise करते हैं तो sweat आता है. Sweat is a very good form of excretion of the body. Another thing is external treatments, चाहे वो कोई भी treatment हो, वो केवल relief देता है. Even naturopathy, heal कौन करता है? Body खुद को खुद heal करती है. That's the principle of naturopathy. Last but not the least is patient's own will to get well. जब patient की खुद की इच्छा होती है, specifically in naturopathy, only then the results are very nice, very good. Now we'll see what naturopathy does. Naturopathy is doing root cause based healing, although it's a modern word, but we are doing it since ages. We focus on the detoxification ताकि toxicity हट जाए, calm down the nervous system ताकि वो stress हट जाए जिससे बीपी बढ़ रहा है, improves digestion and metabolism. डाइजेशन अच्छा होगा तो गट और ब्रेन का फ्रेंडशिप अच्छा होगा, ब्रेन अच्छे से फंक्शन करेगा, बीपी रेगुलेटेड रहेगा, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है जो बैलेंस्ड हो जाएगा। बॉडी के जो 5 एलिमेंट्स हैं, हमारी सबके शरीर 5 तत्वों से बना है, वी आर ऑल मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, इट गेट्स बैलेंस्ड थ्रू नेचुरोपैथी बिकॉज we use all the 5 elements to treat in our therapies. We also encourage natural living and rhythm, so sleeping on time, eating on time. Now we'll see hydrotherapy. So if you're a hypertensive patient, hydrotherapy has the answer. आपका बीपी बढ़ा है तो how enema works is it cleanses your gut, and when your gut is cleansed the toxins go out of the body. The gut and brain friendship is bettered, and then when you do the enema the colon is cleansed. When the colon is cleansed it reduces the load on liver, because liver को फिर कम काम करना पड़ रहा है, कचरा नहीं आ रहा है ना बॉडी में वापस. It calms down the nervous system. ऐसा है ना कि पेट खुश तो सब खुश. It really is, because I've seen patients with constipation and their blood pressure always raises. It also improves the bowel rhythm. जो movement है आपके bowel का, defecation at the proper time, that also happens with enema, although it is advisable to do it under medical supervision. Now we'll see hot foot and arm bath. So what is this? So we have a special type of tub, I've also shown in the image. We soak the arms and foot in hot water, जिसको भी BP रहता है. So it's a very famous naturopathy therapy for hypertension. What happens is the blood gushes through the peripheries. आपके जो हाथ हैं और पैर हैं, वहाँ की जो नसें हैं वो dilate हो जाती हैं, और वहाँ पर सारा जो रक्त है ना शरीर का, it goes towards your periphery. And what happens, it relieves the heart. तो ब्रेन से, हार्ट से जो भी एक्स्ट्रा स्टैग्नेटेड ब्लड होता है, इट स्टार्ट्स फ्लोइंग एंड द सर्कुलेशन इज इम्प्रूव्ड. व्हेन द सर्कुलेशन इज इम्प्रूव्ड, ब्लड प्रेशर अपने आप बैलेंस हो जाता है. The other thing is spinal spray. तो ये एक मशीन दिख रही है आपको. We make the patient sit on this machine and इसके पीछे छोटे छोटे होल्स दिख रहे हैं.
from those holes, good water sprays like fountain, chote chote, it comes out of the holes, and the patient sits on the machine, and spine पे जब ठंडा पानी का प्रहार होता है, it is very very relaxing. It calms down the spine, और सारी की सारी नसें जो शरीर की हैं वो स्पाइन से निकलती हैं. जितनी भी शरीर की सिग्नल्स हैं वो स्पाइन से निकलते हैं. तो अगर हम स्पाइन पे ही मेन फोकस करते हैं तो ब्लड प्रेशर अपने आप रेगुलेट हो जाता है. नर्वस सिस्टम, ब्रेन, ऑटोनॉमिक, पैरासिम्पथेटिक. आइस मसाज ऑन स्पाइन. तो अगर आपके पास ऐसा मशीन नहीं है तो घर पे भी अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है कभी, under medical supervision, you can just take some ice, apply on your spine from your cervical to your lower back for 3 to 5 minutes, and you'll see you feel better and you feel calm, and your brain is much more regulated and is able to manage the blood pressure. The other thing is immersion bath. तो ये एक बाथ टब जैसा टब होता है. इसमें एक स्पेसिफिक वाटर के टेम्परेचर पे हम पेशेंट को इसमें सोक करते हैं, दैट इज 36 to 37 डिग्री सेल्सियस. इससे क्या होता है, एक तो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस होता है. द पेशेंट स्वेट्स इन दिस एंड द टॉक्सिन्स आर एब्सॉर्ब्ड बाय द वाटर. वाटर इन जनरल इज आल्सो वेरी काम एंड सूदिंग टू द सिस्टम, एंड जब भी हो जाता है बॉडी काम भी हो जाती है. जो एक्टिव माइंड रहता है पानी में, इट गेट्स रिलीव्ड, एंजाइटी नहीं होती है, और आपका बीपी रेगुलेट होना स्टार्ट हो जाता है. नाउ बैलेंस सिस्टम. सो वी हैव अ लिस्ट ऑफ, I must say, art therapy, diet therapy, sun and air therapy, massage therapy, fasting, yoga, acupuncture, and practices like just sitting on the ground, meditation, barefoot walking. All these helps you to balance your nervous system. For example, mud therapy works on the fire element. जो भी बीपी होता है या बोलते हैं ना, ब्लड प्रेशर बढ़ा है, तो द फायर एलिमेंट इज aggravated, it is increased, and mud always soothes down the fire because it's cool in nature. तो ठंडी मिट्टी का पट्टी पेट पे, आंखों पे या स्पाइन पे हम लगाते हैं, which really helps. Diet therapy, of course, everybody knows the value of diet nowadays. It nourishes your nerves, reduces the inflammation, जिससे भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, बीपी बढ़ता है, एसिडिटी. जब डाइट अच्छी होगी तो एसिडिटी नहीं होगी. सन और एयर थेरेपी. सन से क्या होता है, सेरोटोनिन जो एक ऐसा हार्मोन है जो बीपी को रेगुलेट करता है, मूड को अच्छा करता है. सन एंड एयर थेरेपी ऑलवेज हेल्प्स इन दैट. Massage therapy, of course, it increases the blood circulation and releases the tension inside your body, both physical and emotional. Fasting, as I've always already explained, कि फास्टिंग जो है वो शरीर का जो बर्डन होता है उसको कम करता है, और अपना ही कचरा स्वयं खाता है. ऑटोफेजी का प्रोसेस होता है. योगा और प्राणायामा, एवरीबडी नोज द वैल्यू ऑफ योगा और प्राणायामा. कुछ ऐसे प्राणायाम है, कुछ ऐसे योगा हैं जो नहीं करने चाहिए हाइपरटेंशन में. सो इट इज वेरी मच एडवाइजेबल टू डू इट अंडर मेडिकल सुपरविजन. नेचर क्योर प्रैक्टिसेस, जैसे मैंने अभी बताया, जब हम घास पे चलते हैं वी फील एट ईज. एंड जब भी किसी का बीपी बढ़ता है या कम नहीं हो रहा है, इवन आफ्टर मेडिकेशंस, दे कैन श्योरली प्रैक्टिस दिस. एक्यूपंक्चर. एक्यूपंक्चर क्या करता है, हमारे बॉडी में दो तरीके के सिस्टम्स है, एक है यांग और एक है यिन. तो ये एक फीमेल और मेल ऐसे हम समझ सकते हैं. एक तो है स्ट्रेंथ का और स्पीड का, और एक है काम एंड कूल सिस्टम. तो जब यांग और यिन का इम्बैलेंस होता है बॉडी में, तब भी कई सारी डिजीजेस एंड स्पेसिफिकली हाइपरटेंशन हैपेंस. In acupuncture, we use very fine needles that don't pain at all, and we put them on specific points to balance your yin and yang by doing your pulse diagnosis. हम पहले pulse check करते हैं, क्या बढ़ा है, कैसे बढ़ा है, we then progress in this treatment. अभी lifestyle कैसे ठीक करेंगे? So there's this thing in naturopathy known as आरोग्य रक्षक पंचतंत्र. So these 5 principles will explain how your lifestyle should be. Eat 2 wholesome meals a day, a balanced diet, 2 times a day. Why 2 times? Although it's a very controversial thing, but it helps the body to actually take in the food and convert it into nutrition and energy. The other thing is drink minimum of 2 liters of water. 2 लीटर पानी दिन में पीना जरूरी है, उससे ज्यादा पिए तो और अच्छा है. Exercise 1 hour a day. Exercise, as I've already explained, is very necessary for nutrition and drainage both. Pray twice a day. जब हम 2 बार दिन में प्रे करते हैं या मेडिटेट करते हैं, we are very much in
balance with our system and our mind. तो हम जब pray करते हैं, we feel at ease, we feel at calm, and we believe in the universal energy. Fasting once a week, as I've already explained, it detoxifies the body. Now, that's what I was talking about, suppression of natural urges. तो हमारी बॉडी की ना कुछ चीजें होती हैं, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना, which we are not, sometimes we don't pay attention to it. तो कभी कभी भूख लगती है, and we are so much indulged in using our phones nowadays and maybe watching a TV that we, और हंगर भी दो प्रकार, भूख भी दो प्रकार की है, एक रियल हंगर है और एक फेक हंगर है। तो अगर अभी आपके सामने पिज्जा आया और आपको भूख लग गई, देन इट्स अ फेक हंगर, एंड वन मस्ट नॉट फॉल इनटू दैट ट्रैप. Real hunger is when you're really feeling hungry and there's a burning sensation in your abdomen. Naturopathy recommends you eating when you're really hungry and not when you see a pizza. The second thing is thirst. कभी कभी हमें प्यास लगती है, हमें पता भी नहीं चलता. We are so unaware of our body's natural urges nowadays that we just keep them aside. Sleep. रात को नींद आती है, लोग सोते भी नहीं है. We are again disturbing our circadian rhythm. Urination, defecation, sweat. Sweat, why? Because we're continuously in an air conditioned room. We're not allowing our skin to breathe. We're not allowing that toxin to escape our body. Breathing. Sometimes our breathing rate is very high and aware of it. Sometimes the breathing rate is very low, unaware of it. So one should be mindful of all these natural urges. And also emotional expression. कभी हमें क्रोध आता है तो वो अंदर ही रह जाता है, या रोना आता है या दुख होता है तो वो अंदर ही रह जाता है. इसको वेग धारणा भी बोलते हैं आयुर्वेदा में. तो whenever, whatever you are feeling, try, allow your emotions to release. Maybe maintain a diary and write it down. Now, the gut-brain friendship, when your gut is good, the brain is good. When your brain is good, the gut is good. So whenever you're having constipation, you'll feel irritated the whole day. And it will increase the inflammation, it will increase the load on your liver, it will cause stress to your vagus nerve. Vagus nerve क्या है ना, बहुत लंबी नस होती है एक, जो मैनेज करती है गट रिलेटेड इश्यूज को. वो भी स्ट्रेस्ड आउट हो जाती है. और फिर जब गट पेट ठीक नहीं रहता तो फिर पूरा दिन स्ट्रेस रहता है. There's a lot of mental stress. So this is what I'm talking about, the gut brain axis. दिस इज व्हाट इज आइसबर्ग फिनोमिना. आइसबर्ग फिनोमिना क्या है, जो टाइटैनिक मूवी में हमने देखा है ना, आइसबर्ग क्या होता है, ऊपर से तो छोटा सा दिखता है, अंदर बहुत गहरा होता है. तो इफ यू आर हैविंग हाइपरटेंशन, मे बी यू जस्ट सीइंग योर एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, बट क्या पता अंदर से स्ट्रेस हो, या फिर इम्बैलेंस्ड कोलेस्ट्रॉल हो, या फिर maybe there's another cause that we are not seeing. We just giving drugs that suppresses the blood pressure down. So what naturopathy does, in coordination with allopathy, in coordination with your doctor, we don't tell you to stop your medications, but we work on that root cause that is causing your elevated blood pressure. Maybe it's your diet that is high in triglycerides, or maybe it's your stress that is caused. So we tell you, we work on all the aspects and treat the disease through this phenomena of iceberg, that is going towards the root cause. And now let's see why you should choose naturopathy, because as I explained, it treats the root cause. It's a drugless healing. We don't intervene with your drugs. We don't intervene with the medicines that you're already consuming. Also, we do personalized care. So our treatment protocol is different for each and every patient and each and every individual. The other one is we restores the body's innate ability, that आपकी vital energy को हम work करते हैं, your internal power of treating yourself. And also naturopathy is very much sustainable. One must learn how to be naturally aligned with all the elements and with the nature, and then it comes into your lifestyle and you start practicing it, like the Arogya Rakshaka Panchatantra, eat twice a day, all that. If you follow these 5 principles, the diseases stay at bay. Thank you, everyone. So at Venu Naturopathy Center, the address and phone number is provided. One can always visit us for any chronic diseases. Thank you. Thank you, Dr. Anshika. I now invite Dr. Kaushlendra Dwivedi to speak on yoga and diet role in managing hypertension. Dr. Kaushlendra Dwivedi is working as a consultant at Patanjali Wellness in Guwahati. With over 11 years of experience, he has successfully treated a wide range of chronic conditions
including cancer, liver diseases, and kidney disorders. Dr. Dwivedi integrates traditional naturopathic principles with modern healing practices. Over to you, Dr. Dwivedi. Thank you so much, man. Good evening, all of you. बहुत सारे लोग होंगे जो मोबाइल पे ऑन करके अभी छोड़ दिए होंगे, तो अभी अगर मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर तो आप लोग आ जाइए, क्योंकि अभी एक फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट दिखाएंगे आपको डाइट और योगा के माध्यम से। तो शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर अंशिका से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्लाइड चेंज करेंगे में मदद करेंगी। हाइपरटेंशन एक सिग्नल है। सिग्नल इस चीज का है कि ये हमारे जो है इनर मस्कुलर जो रेजिलेंस होता है उसको दर्शाता है। जैसे मान लीजिए कि ब्लड को आप पानी की तरह ट्रीट करिए, कि एक पाइप हो और उसमें पानी भरा हो, और अगर वो पाइप नैरो हो जाता है तो पानी का प्रेशर तेज हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि आपका प्रेशर हाई हो रहा है। इसी तरीके से ये मस्कुलर रेजिस्टेंस कहलाता है, अर्थात जितना ये हार्डर, जितना नैरो साइड होगा आर्टरीज के बीच में, उनका ब्लड का सर्कुलेशन उतना जो है तेजी होगा, तो आपका उतना पासिंग आउट में दिक्कत होगा, समस्या होगा। इसलिए मैंने इसमें हाइपरटेंशन इज अ सिग्नल नॉट अ डिजीज। और हमारा जो मेन होता है इस रेजिलेंस को कितना कम करें, अर्थात सर्कुलेशन कितना मेंटेन करें और एक रिदमिक मेंटेनेंस आए। दूसरा जो इसका मुख्य कारण है कि भाई इनका कॉमन कॉज क्या होता है। इनका कॉमन क्लास क्रोनिक स्ट्रेस हो सकता है, ओबेसिटी हो सकती है, डायबिटीज हो सकते हैं। ये सारी चीजें मिलके एक एक्यूमुलेशन करती हैं हमारे बॉडी में, जिससे कि हमारा बहुत सारा चीज डैमेज होता है। जैसे मान लीजिए अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो ये हमारे बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को दर्शाता है। आप इसको ऐसे समझें कि कहीं अगर कहीं पे आग जल रही है और आपने उसको पानी वहां पे रखा हुआ है, तो कई बार हमने देखा होगा कि जो आग के एसेज होते हैं वो पानी के ऊपर तैरते हैं। वो क्या है, वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि वो मैनेज नहीं हो पा रहा है। इसी तरीके से इंटरनल बॉडी में हमारा क्या होता है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। तो ये चीजें होती हैं। अब हाइपरटेंशन को जब हम मैनेज करने की बात करते हैं, खासतौर पे योगा से या फिर डाइट से, तो हमको सबसे पहले उसके रूट कॉज पे काम करना होगा। जैसे कि कलीग हमारी डॉक्टर अंशिका ने बताया है कि नेचुरोपैथी का जो मेन प्रिंसिपल है वह यही है कि हम रूट कॉज को ट्रीट करते हैं। अगर आपका डायबिटीज की वजह से एसोसिएट हो रहा है हाइपरटेंशन, तो हम डायबिटीज को पहले ट्रीट करेंगे। अगर आपका फैटी लीवर से हो रहा है, अगर आपका लीवर में कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस अच्छा नहीं हो रहा है, उसके कारण ऐसी चीजें आ रही हैं जिसकी वजह से हाइपरटेंशन बढ़ रहा है, या फिर क्रोनिक स्ट्रेस या क्रोनिक एंजाइटी जो कि लगातार आपको दिक्कत हो रही है, तो उसको हम मैनेज करने के लिए क्या करते हैं, उसमें हम ये मॉर्बिडिटी पहले देखते हैं कि इसके साथ कोमॉर्बिडिटी क्या है, मतलब इनमें क्या हेल्प कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद हम देखेंगे कि क्या है। इसलिए हम कहते हैं कि योगा एज अ नर्वस सिस्टम रिसेट। इसका मतलब क्या हुआ, अभी पहले चर्चा हुई स्लाइडों में कि दो प्रकार के सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे काम करते हैं मेनली, जिसमें से कि सिंपैथेटिक जो है नर्वस सिस्टम क्या करता है, फाइट और फ्लाइट, या तो लड़िए या तो फिर स्थानांतरण, ट्रांसफर ले लीजिए। दूसरा डाइजेस्ट एंड रेस्ट। तो जब आप डाइजेस्ट करेंगे चीजों को, रेस्ट करेंगे, तो आप काम माइंड से कर पाएंगे। आप सिंपल तरीके से ऐसे समझिए कि जब कभी आपको गुस्सा आता है तो हम किसी के चेहरे पे नहीं सहलाते, हम क्या करते हैं, उसकी पीठ पे सहलाते हैं। तो योगा को आप एज अ हेल्प उस तरीके से देखिए कि वो कैसे सहायता कर रहा है। वो इस तरीके से सहायता कर रहा है कि आपका जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको दूर कर रहा है। जब हम प्राणायाम कर रहे हैं, जब हम हील कर रहे हैं अपने आप को, जब हम अनुलोम विलोम कर रहे हैं, भ्रामरी कर रहे हैं, शोधन प्राणायाम कर रहे हैं, तो ये हमारा पूरा ऑटोनॉमिक बैलेंस कर रहा है, पूरा हमारा माइंडसेट कर रहा है। ये हमारा जो है आपका पूरा ये हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस जो होता है उसको पूरा एक तरीके से स्टिमुलेट करता है, बेगल टोन को नियंत्रित करता है। तो ये ऐसे करके, और जिसकी वजह से जो हार्ट रेट में वेरिएबिलिटी आती है
उसको भी वो मेंटेन करता है, अर्थात बहुत ज्यादा टैकीकार्डिया या ब्रेडिकार्डिया नहीं आता, वो साम्य अवस्था में हो जाता है, वो सरल तरीके से उसका इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। अब नेक्स्ट आप देखेंगे कि योगा को कैसे हम यूज करें। योगा आपके लिए अच्छा, मेक एस यू फील गुड। जब हम योगा की बात करें तो हम दरअसल योग की बात कर रहे हैं, और योग में आपका प्राणायाम का बहुत अच्छा व्यवस्था होता है कि प्राणायाम जब आप करेंगे तो प्राणों को आयाम देते हैं। फिर योगा क्या करते हैं, योग आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट करता है, अर्थात जो हम लेके पैदा हुए हैं, जैसा कि भी पहले चर्चा हुआ इनट और रिक्वायर्ड इम्यूनिटी, उसमें भी CD3 CD4 सेल्स होते हैं, मेमोरी सेल्स होते हैं। तो हमारा जो इनट इम्यूनिटी है उसको मेंटेन करता है। उसके अलावा क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। जब हम बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं तो कई बार हमारा जो एटीट्यूड है और हमारा जो इंटरनल ऑर्गन का जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो भी हम बात करते हैं कि वो भी अच्छा इंप्रूवमेंट हो, उसमें भी एक अच्छा इंप्रूवमेंट है, जिससे कि होमोसिस्टीन लेवल वगैरह जब आप टेस्ट कराते हैं तो वो उसी का रेजिलेंस होता है कि जो आपके इनर बॉडी में जो डिस्टरबेंस हो रहा है, जो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि बाहर से मोटा होना बुरी बात नहीं है, अंदर से मोटर होना बुरी बात है। जैसे ऑर्गेनोमेगाली कहीं कई बार कंडीशंस आ जाती है, स्प्लेनोमेगाली आ जाएगा, हेपेटोमेगाली आ जाएगा, ये कंडीशंस इसीलिए हो रही हैं क्योंकि आप जो है फ्लेक्सिबल नहीं है। तीसरा है स्ट्रेंथ, आपकी बॉडी को अच्छा करता है। आपका योग क्या करता है कि आपके सेल्स के बीच में जो इंट्रा सेलुलर एक्टिविटी है उसको मेंटेन करके आपके मसल टोन को अच्छा करता है, मस्कुलर स्ट्रेंथ अच्छा करता है। कई बार जब हम सूर्य नमस्कार लाइक ये स्ट्रक्चरल पोजिशनल बेस्ड अगर हम योग अभ्यास करें, आसन करें, तो हमारा पूरा ओवरऑल बॉडी का ही जो है विकास होता है और स्ट्रेंथ मजबूत होता है। पहले भी इस पे बात की है, योगा रिड्यूस एक्सेस एंजाइटी। तो जब हमारा एंजाइटी, एंजाइटी क्या है, एंजाइटी आपको पता ही है क्या है कि बहुत ज्यादा ओवर थिंक करना, स्ट्रेस लेना। तो जब हम बहुत ज्यादा एंजाइटी करते हैं, ओवर थिंक करते हैं, तो हमारा वो फाइट और फ्लाइट वाला जो सीक्वेंस है वो जल्दी एक्टिवेट हो जाता है, अर्थात कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है। तो ये क्या करता है कि कॉर्टिसोल लेवल को रिड्यूस करता है, जिससे हमारा बेगल टोन भी मेंटेन होता है, हमारा गट ब्रेन का भी एक्सिस अच्छा होता है, और हमारा जो ब्रीथलेसनेस और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ नहीं होता। दूसरा क्या है इसमें, योगा हेल्प्स आपका फोकस करने में। जब हम किसी काम को करने जाते हैं तो कहा भी जाता है कि एक समय में अगर हम एक चीज करें, एक चीज पे फोकस करें, जैसा पहले इन्होंने चर्चा किया था डॉक्टर ऋषिका ने कि अगर हम खाना खाते समय मोबाइल देख रहे हैं तो दरअसल हम वो खाना नहीं खा रहे हैं, हम मोबाइल खा रहे हैं, क्योंकि मोबाइल के मनोभावना सब उसमें, किसी ने अगर मान लीजिए थप्पड़ मार दिया तो हम तो खाना खा रहे हैं, लेकिन वो फीलिंग हमारी थप्पड़ वाली आ रही है और वो गुस्से वाली आ गई कि क्यों मार दिया, अगर हम उसके सपोर्ट में आ गए। तो योग क्या करता है कि आपको फोकस करने में मदद करता है, आपका स्ट्रेंथनिंग अच्छा करता है। एक एंजाइटी रिलेटेड एक डिसऑर्डर होता है, मैम ने चर्चा किया पहले आईज के रिलेटेड, तो उसमें एक डिसऑर्डर होता है क्रोनिक सीरस रेटिनोपैथी, CSR होता है। और मैं आपको बता दूं कि CSR का ऐसा कुछ विशेष उपाय नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। आई डॉक्टर से मेरी बात हुई है इस बारे में और होती रहती है, कई सेमिनार्स में भी बोला गया है कि CSR नॉन ट्रीटेबल, खाली एडजस्टेबल और मैनेजेबल थिंग्स है आंख में। तो सीरस रेटिनोपैथी को जो होने की जो कारण है, सबसे बड़ा कारण यही है कि एंजाइटी। जब एंजाइटी होता है, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है, तो अचानक से एक फ्लूइड जो है वो पीछे सीरस रेटिनोपैथी हो जाता है, क्रोनिक सीरस रेटिनोपैथी। उसके कॉज में मेन कॉज वही एंजाइटी है। फिर हम करते हैं कि योगा का रिसर्च इनसाइट क्या है। ऐसा बहुत सारे RCTs में दिखाया गया है, रैंडम कंट्रोल ट्रायल में ऐसे दिखाए गए हैं, और खुद पे भी अगर आप करके देखें तो योग को आप अगर करते हैं लगातार, तो आपका जो लोअर ब्लड प्रेशर का जो करने का जो काम है वो ये करता है। तो आपका ब्लड प्रेशर लोअर होता है, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, जाहिर सी बात है अगर आपका ब्लड प्रेशर है और अगर आपने उसको मेंटेन करके रखा है तो आपको पेरिफेरल आर्टरी डिजीज और बाकी चीजें, डीप वेन थ्रोम्बोसिस या तो फिर कार्डियो इंसिडेंस, ये नहीं होने हैं, ये आपको नहीं होगा। दूसरा, इसमें दूसरा चीज जो है वो ये होगा कि हम आपको, जब हम डेली रूटीन में करते हैं तो स्ट्रेस रिडक्शन होता है और क्रूशियल मैनेजिंग होता है हाइपरटेंशन का इफेक्टिवली। मतलब जो आप मैनेज करने के लिए मेडिसिन ले रहे हैं, चाहे वो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स ले रहे हैं, चाहे आप कन्वर्टिंग एंजाइम्स रिसेप्टर्स ले रहे हैं, चाहे आप कोई भी प्रकार की मेडिसिन ले रहे हैं, चाहे वो बीटा ब्लॉकर्स ले रहे हैं, तो
हर मेडिसिन का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये इम्पैक्ट अगर योग करते हैं आप तो उसके साथ तो वो इम्पैक्ट कम हो जाता है। जैसे कई बार ऐसा देखा है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जब हम लेते हैं मेडिसिन हाइपरटेंशन में, तो एंकल पे स्वेलिंग आ जाती है ड्यू टू एम्लोडिपिन, उसमें एक साल्ट होता है। तो जब आप योग करेंगे और आपका जब सर्कुलेशन मेंटेन रहेगा, रिदम मेंटेन रहेगा, तो आपका जो एंकल स्वेलिंग आएगा वो नहीं और आएगा, और धीरे 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 करके आप जो मेडिसिन है उसको भी रिड्यूस कर पाएंगे। इसमें तीसरा है एडॉप्टिंग अ योगिक लाइफ स्टाइल प्रमोट्स बेटर स्लीप पैटर्न्स। हाँ जी, स्लीप जो है ये बहुत बड़ा डिसऑर्डर आज के समय में हो गया है, कि डिस्टर्ब स्लीप, पैटर्न लॉस स्लीप, कि स्लीप अपनिया। बहुत सारे लोग एक मशीन यूज करते हैं जिसको बाईपैप सीपैप बोलते हैं। तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ओएसए, इसका एक टेस्ट होता है, उसमें लोग टेस्ट कराते हैं तो उनको पता चलता है कि हमारा जो रिदमिक है, हमारा जो मूवमेंट्स हैं, स्लीप, ड्रीमी स्लीप, ये सब इन्हीं का कारण है। तो इसमें आपका होता है, और ये जब हमको स्लीप अच्छा आएगा, एंजाइटी दूर होगी, तो हमारा इनहेंस्ड हेल्थ आउटकम आएगा। मतलब कि योग खाली आपका हाइपरटेंशन कम नहीं करेगा, उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें जो हम लेके आते हैं, हाइपरटेंशन की दवा खाएंगे तो फिर और होगा, बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब होती है, डिस्टर्ब होता है। जब हमारा स्लीप अच्छा होगा, अडॉप्ट करेंगे हम, तो चीजें और अच्छी होंगी। नेक्स्ट में चलते हैं। योगिक लाइफस्टाइल एम्फसाइज रेगुलर प्रैक्टिस व्हिच कैन सिग्निफिकेंट द मैनेजमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर लेवल ओवरऑल हेल्थ। ओवरऑल हेल्थ आपका अच्छा करता है अगर आप इसको माइंडफुलनेस से अगर इसको प्रैक्टिस करेंगे दूसरे में, तो आपका जो प्रैक्टिस है योग वाला, वो आपके मेडिकेशन के साथ साथ आपके शरीर में होने वाले जो उसके बाकी साइड इफेक्ट हैं उनको भी कम करेगा। अब हम डाइट की तरफ धीरे से बढ़ेंगे। तो योग के साथ अगर आप डैश डाइट, एक अप्रोच है ये, कि डाइटरी अप्रोच है स्टॉप हाइपरटेंशन, और ये ग्लोबली और नेशनली इंडियन में भी ये प्रूव्ड हो चुका है कि अगर हम डैश डाइट को फॉलो करेंगे योग के साथ साथ बाकी चीजों के साथ साथ, तो हमारा जो इंडोथेलियल लेवल पे जो चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस जो है वो कम होते हैं, स्टिमुलेट होती है हमारी वेगस नर्व, और हमारा गट ब्रेन का एक्सिस अच्छा होगा, जाहिर सी बात है। हाँ जी, अब बीपी बढ़ता है तो सबसे पहले हम ईसीजी कराते हैं, इकोकार्डियोग्राम, लेकिन ईसीजी ना कराना पड़े इसलिए आपको ये ईसीजी फॉलो करना पड़ेगा। ईसीजी क्या है? अ सिंपल गाइड टू मैनेज हाइपरटेंशन। कैसे करना है? ई इक्वल टू होता है ईट स्मार्ट। आप बैलेंस्ड मील लीजिए, पोर्शन साइज कंट्रोल करिए, और हार्ट हेल्दी ऑप्शंस को जो अभी हम फर्दर स्लाइड में दिखाएंगे उनको चूज करिए, उनका चुनाव करिए। दूसरा क्या है? सी, सी इक्वल टू कट साल्ट। जब हम सोडियम का लेवल अपने खाने में, हमारे नमक ज्यादा खाते हैं, बढ़ जाता है, तो उससे क्या होगा? एक्युमुलेशन होगा, तो फिर इंटरस्टिशियल टिश्यूज में वो फ्लूइड रिटेंशन होगा, और फिर आपको एडिमा होता है। तो उसके लिए क्या करना है? कट साल्ट करना है। साल्ट को लिमिट करिए, जो डाइटरी रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करिए, और सबसे आइडियल है जो 15 से 1.500 मिलीग्राम पर डेली। जी फॉर गो प्लांट। जब हम गो प्लांट बेस्ड कहते हैं तो आजकल हम पोटेशियम की बात कर रहे होते हैं, नेचुरल चीजें जो भी हम पाते हैं। आजकल आपने सुना होगा कैंगन वाटर, तो पोटेशियम, पोटेशियम रिच जितनी भी ये फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, होल ग्रेन्स हैं जो इजीली डाइजेस्टेबल है, कंपाउंड कार्ब एंड सीड्स हैं, तो जितना आप प्लांट बेस्ड पे जाएंगे उतना आपके शरीर के लिए अच्छा रहेगा। आप एनिमल फैट्स को रिड्यूस करिए। ये कुछ प्रकार के डाइट्स हैं जो कि हम मैनेज करने के लिए हाइपरटेंशन को यूज करते हैं। पहला है डैश डाइट, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रेन्स होंगे, इनको फर्दर भी इलाबोरेट करेंगे। दूसरा है होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट, लेग्यूम और वेजीज में। तीसरा है लो सोडियम डाइट, इसमें बेरीज और टर्मरिक ये आते हैं। पोटेशियम रिच फूड, अगेन बेरीज, टर्मरिक और फ्लैक्सीड, इसमें एल होते हैं, कोइक एसिड्स हैं, ओमेगा 3 होते हैं। और सबको पता है आज के समय में कि ओमेगा 3, 6, 7, 9 का कैसे इस्तेमाल करते हैं और किस में पाया जाते हैं। आमतौर पे फ्लैक्सीड में सबसे अच्छा पाया जाता है। और सबसे जो ट्रेंडी वर्ड है और ये जो डाइट का पैटर्न चल रहा है उसमें सबसे अच्छा है, ये मानते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग, इस पे बात करना थोड़ा सा जरूरी है। इंटरमिटेंट फास्टिंग पे कभी भी आप बिना एडवाइस के इंटरमिटेंट मत करिए। एडवाइस का मतलब ही होता है थोड़ा सा एडवाइस,
जो आप कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा जब हम चीजें ऐड करते हैं तो उसको एडवाइस बोलते हैं। तो जब इंटरमीडिएट फास्टिंग की बात आती है, मेरे पास कई सारे पेशेंट्स आते हैं जो कई बार 6 महीने 8 महीने से 16 8 14 10 12 12 ऐसे फार्मूलेज जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब वगैरह पे चलते हैं उनको लागू करके जब अपने ऊपर करते हैं तो कई बार डाइट ना क्रैश हो जाती है। क्रैश होने के बाद क्या होता है कि हम चीज तो दूसरी ठीक करने गए थे लेकिन बीमारी जो है वो दूसरी लेके आ गए। उसमें क्या होता है कि न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है आपकी वो कम हो जाती है, न्यूट्रिशन कम हो जाता है। इसलिए वेल बैलेंस्ड डाइट लीजिए, और मेरे हिसाब से जो आपकी डीएनए की डाइट है वो सबसे बेहतरीन डाइट है। अर्थात आप जब तक पोर्शन कंट्रोल करिए, जो आपके घरों में खाया जाता था अगर आप वो खा रहे हैं और पोर्शन कंट्रोल करके खा रहे हैं, और दूसरी सबसे बड़ी चीज है आपके पास के जो भी नेचुरोपैथी डॉक्टर्स हैं उनसे मिलके और उनसे बात करके खाइए। आपके मैं मैडम का देख रहा था कि दिल्ली में इतना अच्छा सेंटर है ये, अगर आप यहाँ जाके उनसे थोड़ा डिस्कशन करके और एडवाइस अगेन, अगर आप थोड़ा सा एडवाइस लेके सलाह लेके और अपने आप को फॉलो करके और मैनिपुलेट को करेंगे तो अच्छा होगा। अब डैश डाइट पे बात करते हैं, तो डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, ये जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में से ये बताया गया है कि विदाउट मेडिकेशन आप ब्लड प्रेशर को लो कैसे कर सकते हैं। और ये गोल्ड स्टैंडर्ड डाइटरी ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन है। जैसे गोल्ड स्टैंडर्ड होते हैं इन्वेस्टिगेशन, वैसे ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल है इसका हाई क्या करना है, ज्यादा क्या खाने हैं, फ्रूट्स खाने हैं, वेजिटेबल्स खाने हैं, होल ग्रेन खाने हैं, लेग्यूम्स, लो फैट, डेयरी नट्स एंड सीड्स। सीड्स में आपका चुनाव पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स। और जब भी आप कोई फ्रूट खाइए उसके साथ सीड्स 1 चम्मच ले लीजिए। फ्रूट्स का जो कार्ब होगा उसको ये पचाने में मदद कर देगा, और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है जब हम सीड्स लेते हैं। क्या लो क्या होना चाहिए? सोडियम होना चाहिए, सैचुरेटेड फैट आपका जो है वो लो होना चाहिए, प्रोसेस मीट लो होना चाहिए, और शुगर स्वीटनेट बेवरेज एंड स्वीट्स। क्योंकि जब ये स्वीट होगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ेगा, आपके लीवर में कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने का तरीका जो मैकेनिज्म है वो कम हो जाएगा, तो आपका हाइपरटेंशन बढ़ जाएगा। आगे देखते हैं कि डैश इंपॉर्टेंस क्या है। अब आपका ये मैंने बता दिया कि ब्लड प्रेशर लेवल को मेंटेन करने के लिए साइंटिफिकली और सिग्निफिकेंटली प्रूव्ड है। अब ये लीन प्रोटीन्स का एडवोकेसी करता है, लो फैट डेयरी होता है इसके लिए, और आपके हेल्थ हाइपरटेंशन को इफेक्टिवली मैनेज करते हैं हार्ट हेल्थ के लिए। रिड्यूसिंग सोडियम इंटेक इसेंशियल है इसमें, और यह डाइटरी शिफ्ट कैन लीड टू नोटिसेबल इंप्रूवमेंट। अगर आप डाइटरी शिफ्टिंग करते हैं, जैसे कि अगर आपने आज 4 रोटी खा रहे हैं और आपको अपना वजन कम करना है, तो मैंने पहले भी बताया कि आपको पोर्शन कंट्रोल करना है। और पोर्शन कंट्रोल करने को लोग ये सोचते हैं कि रोटी तो एक कर देंगे लेकिन सब्जियां बहुत सारी खा लेंगे तो हो सकता है हमारा, वो जितनी आप सब्जियां ज्यादा खा रहे हो आप उस सब्जी पे ध्यान दीजिए कि उसमें नमक कितना पड़ा है। अब ये क्यों काम करता है, इसका साइंटिफिक बेसिस क्या है? तो इसमें मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है। मैग्नीशियम आपके एंजाइटी रिलेशन को अच्छा करेगा, एंजाइटी को खत्म करेगा। कैल्शियम आपके हड्डियों को मजबूती देगा और आर्टरीज को साफ करने में मदद करता है। तो ये क्या करते हैं, द न्यूट्रिएंट्स हेल्प रिलैक्स ब्लड प्रेशर, रेगुलेट सोडियम बैलेंस एंड लोअर बीपी नेचुरली, लो इन सोडियम, रिड्यूसिंग साल्ट इंटेक, लोअर फ्लूइड रिटेंशन। जब आप साल्ट इंटेक कम करेंगे तो फ्लूइड रिटेंशन जो है वो आपका कम होगा, और वस्कुलर प्रेशर, जैसे मैंने कहा वो जो पाइप है पानी का उसका जो वो नैरो होने का मैंने बताया एग्जांपल, वो नैरो नहीं होगा, और आपका हार्ट जो है वो एक्चुअली अच्छा काम करेगा, हार्ड उसको काम करना नहीं पड़ेगा। अब फाइबर कंटेंट क्या करता है कि इंसुलिन सेंसिटिविटी, जैसा मैंने बताया आपको कि हेल्प इंप्रूव इंसुलिन सेंसिटिविटी एंड रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल। ये क्या करता है की इन मैनेजिंग मेटाबॉलिक सिंड्रोम एंड हाइपरटेंशन। जितने भी मेटाबॉलिक डिजीज हैं, चाहे वो थायराइड हो, चाहे पीसीओडी हो, चाहे पीसीओएस है, चाहे आपका डायबिटीज हो, चाहे आपका हाइपरटेंशन हो, उनको मैनेज करने के लिए इंसुलिन का रिस्पॉन्स अच्छा को अच्छा रखेगा। तो अगर सेंसिटिविटी बढ़ रही है तो उसमें आपका काम करेगा मैनेजिंग मेटाबॉलिक सिंड्रोम और हाइपरटेंशन। रिसर्च हाईलाइट में अगर हम दिखाएं आपको, तो न्यू जनरल मेडिसिन 2001 में शो किया गया था
उन्होंने बताया कि बीपी रिडक्शन 11.5 से सिस्टोलिक और नीचे का 5.5 mmHg कम हुआ। ग्रेटेस्ट बेनिफिट सीन इन पीपल विथ स्टेज 1 हाइपरटेंशन। हाँ जी, ये जरूरी है क्योंकि ये स्टेज 3 तक, जैसा पहले एग्जांपल दे दिया गया है कि ये अगर आप अर्ली आते हैं तो अर्ली बर्ड्स ऑफर मिलते हैं हर जगह ना, तो यहाँ पे भी यही है। अगर स्टेज 1 पे आप अगर अपना डाइटरी अप्रोच चेंज करते हैं तो आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करना, आपको रिजल्ट का। अब दूसरे ने दिखाया था, दूसरा रिसर्च 1997 में हुआ कि सिस्टोलिक बीपी जो है 5.5 mmHg, डायस्टोलिक 3 mm, और में मतलब केवल जो है 2 महीने अगर इस डाइटरी अप्रोच को किया गया तो उसमें इतना रिडक्शन देखा गया। और ये कंटिन्यूस है, मेटा एनालिसिस किया गया जिसमें ये दिखाया गया कि पूरा ओवरऑल हार्ट हेल्थ को अच्छा किया, खाली बीपी के लिए नहीं, बीपी से होने वाले बाकी चीजों। आगे बढ़ते हैं। एडिशनल बेनिफिट क्या है जब हम सोडियम कम कर देंगे, पोटेशियम हाई कर देंगे, फाइबर रिच फूड्स खाने लगेंगे, फल खाएंगे, सब्जियां खाएंगे, तो एडिशनल बेनिफिट क्या होगा? आपका वेट मैनेजमेंट होगा। सबसे लार्जेस्ट इंडस्ट्री इस समय बन रही है ओबेसिटी को कंट्रोल करने वाली चीजें कि वेट रिडक्शन कैसे करें। तो वेट रिडक्शन आपका होगा, उसके साथ साथ बाकी चीजें भी, पूरा ओवरऑल हेल्थ ही अच्छा होगा। अब एक इंडियन मील आपको बताते हैं, सिंपल डाइट, डैश डाइट का। ब्रेकफास्ट में आपको ओट्स लेना है, और ओट्स ध्यान रखें कि आप स्टील कट ओट्स लेंगे तो ओवरनाइट सोक्ड कर दीजिए, उसमें थोड़े बनाना काटिए, एक बनाना लीजिए, उसमें पोटेशियम बहुत अच्छा होता है। आलमंड्स लीजिए आपके विटामिन ई और हार्ट हेल्थ के लिए, और लो फैट मिल्क लीजिए। लो फैट मिल्क की जब बात करते हैं तो उसको जो है स्कीम्ड मिल्क की श्रेणी में डालते हैं। आप चाहें तो आलमंड मिल्क भी ले सकते हैं। तो ये ब्रेकफास्ट लेंगे। दूसरा क्या है, लंच में हम ब्राउन राइस लेंगे, पालक लेंगे विटामिन के लिए जो आपके ब्लड क्लॉट को मेंटेन करने में मदद करता है। ककुम्बर सलाद लेंगे, और फ्लैक्सीड पाउडर, जैसा मैंने बताया एएलए होता है, अल्फा लिपोइक एसिड, फ्लैक्सीड पाउडर में पाया जाता है। ओमेगास भी होते हैं। स्नैक में हम रोस्टेड चना और बटर मिल्क, जब रोस्टेड चना की बात आती है तो हेल्दी प्रोटीन पाया जाता है इसमें। तो जिनको यूरिक एसिड की समस्या है वो भुना हुआ चना नहीं लेंगे। मैंने ये चीजें आप बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप जो भी आपके नजदीकी नेचुरोपैथी सेंटर्स हैं या जो ये लोग करते हैं मेनू में आ पाइए, और इन चीजों को आप, ये एक सिंपल डाइट प्लान है, ये केवल और केवल बीपी के लिए है। डिनर में मल्टीग्रेन रोटी लीजिए, मिक्स वेजिटेबल सूप लीजिए, तो ये केवल एक डाइट प्लान है। लेकिन बीमारी किससे हुई है, कॉज का कैसे आपको निदान करना है, कैसे आपको अपने कारण को अच्छा करना है, कैसे अपने पूरी बॉडी हेल्थ को अच्छा करना है, उसके लिए ऑफलाइन कंसल्टेंसी, और जहां भी नेचुरोपैथी सेंटर है आप वहां जाइए और अपना बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करिए। दिल्ली वाले वहां पहुंचे। थैंक यू वेरी मच इनवाइट करने के लिए। थैंक यू। Thank you, Dr. Dwivedi. I'm just trying to see किसी का कोई सवाल है before I close and conclude. Hypertension, we know, remains one of the most silent yet dangerous health conditions today. It doesn't just affect the heart, it also impacts vital organs, including the eyes, leading to conditions like hypertensive retinopathy, which can silently damage vision over time. And as Dr. Sumita Das has also highlighted, that the damage caused to the retina sometimes is irreversible. This underlines the importance of early detection and accurate blood pressure monitoring. Naturopathy, as Dr. Anshika Pathak also has mentioned, in naturopathy, we are not stopping any allopathic treatment, but naturopathy addresses the root cause, which basically is to do with your lifestyle changes mainly. And also, Dr. Kaushalen Dwivedi has highlighted the importance of diet. It is difficult to control and to discipline ourselves, but addressing the root cause of these issues always is the right way to go forward. So let us take forward the key messages of this day: the importance of awareness, accurate blood pressure monitoring, and an integrative holistic approach to managing hypertension. So as we are concluding today's webinar on World Hypertension Day, I'd like to express my sincere thanks to all our esteemed speakers for sharing such valuable insights on managing hypertension through both medical and natural approaches.
A heartfelt thanks to our organizing team, technical staff, and everyone who made this event possible behind the scenes. To our participants, thank you for your time, attention, and thoughtful engagement. Your presence made this event truly meaningful. Let's continue to spread awareness and encourage healthier lifestyles for a better, hypertension-free tomorrow. Thank you once again. Stay safe, stay well. Have a wonderful weekend. Thank you all.